Hello friends, I am Professor Sonia Dhotare. In previous lecture, we discussed on the programming paradigms. In this lecture, we discussed the features of Python. The two major features of Python are class and object. So we focus on the class and object first. Class is a user-defined data type. Objects with similar methods are grouped together to form a class. Python is again an object-oriented language, so it must consider the concept of object-oriented programming. Next, suppose class is a student. Class is a student. Suppose class is a FE student, then all the students, 65 students suppose are in a class. All the students are an object of that class. Every object having its own properties, like roll number रहेगा हर एक student का, name रहेगा, course रहेगा, and marks, aggregate marks. So operation we can perform, get the data, we can get a information from student, roll number, name, marks. We set in a proper order, we make a record of it, and we can edit the data. For specific roll number, we can change the marks, we can change the roll number of a particular student. So syntax for creation of class is a keyword. It is in a small case letter. Then class name. You can write any name. Then colon. Same as a function definition. Here instead of class, in function we write def as a keyword. Then the next thing is a docstring. Docstring already discussed in a function topic. And then the class members. Class members means all the variables, methods defined in a class, all the statements in a class. So here is example, class is a keyword, then my class is the name of the class, and then colon. So here I created one class, its name is my class. Next, object. Object is an instance of class. It is a physical entity, like a student is an object of a FE class. Already I explained that is, suppose there are 67 students in a class, then all are the objects having properties, roll number, name, marks, address. Hence we can have multiple instances of class. Class is an instance, object is an instance of class. So one object is one instance. There are 67 students, means 67 instances of a class. So every class may have a multiple instances. More than one instance is a multiple instance. Here the syntax to create an object, object name equal to class name and blank parenthesis, means it is a constructor, it is called as a constructor. Call variable and methods from class. अगर हमें specific class में अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको एक्सेस करना है, तो हमें एक्सेस करने के लिए we require object name. So object name dot variable name. While accessing any variable or method, we calling it by dot operator. We already know it in a function. So object name dot method name if I want to access a method, object name dot a variable name if I want to access a variable. Here is example. Suppose my class we already created in previous slide we already created here my class space my class. Then suppose P1 is the object of that class. You can write any name by using the identifier rule. So P1 equal to my class. What is the name of the object? And X is a variable which I define in a class. So if I want to access that value of X, then print P1.x, means P1 is the object name here, and .x, that is a variable name. So we access a variable or a method of a class using an object and dot operator. Next, here is a simple example of creation of class and object. Suppose my class is a stud. So class is a keyword, then class name is a stud. Then I have declared one variable in a class where equal to 30. Its value is 30. Then as we know how you declare and define the function. So def is a keyword to define a function. Display is the function name. And self is the first parameter of a class. You can write any name here, but it is a self is a first parameter. Then I am here printing method in a class in double quote. Object of a class is obj. You can write any name here equal to stud. That is the default constructor. Class constructor name is same as class, means my class name is a stud, constructor name is again a stud.
but only difference is that in class we not include the empty parenthesis, in constructor we include the parenthesis. Then I want to access this variable 30, then print obj dot obj is the object name dot var is a variable, so output is 30. Again I want to display method, I want to access a method of class. Display method is again a method of class, variable is again a variable of class. So obj dot display, it goes to the, when I call this method, you know, when you call a particular method, it goes to the definition of that method. Then here print method in class, then none. Now we learn a self parameter, which is the first parameter of a method of a class. It is the first parameter of a method of class. It is a reference to the first parameter of any function in the class. क्लास में आप कौन सा भी फंक्शन लिखोगे, हर एक फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर कंपलसरी सेल्फ चाहिए. सेल्फ की जगह आप ए लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिखो, मगर फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो एज अ सेल्फ रहेगा. इट इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग टू द क्लास. क्लास के जो भी वेरिएबल रहेंगे उनको एक्सेस करने के लिए आप वो पैरामीटर यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से भी आप वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो. इट डज नॉट हैव टू बी नेम सेल्फ, यू कैन राइट एनी नेम, बट इट इज अ फर्स्ट पैरामीटर. ये याद रखना है कि हर एक मेथड का फर्स्ट पैरामीटर जो है वो सेल्फ ही रहने वाला है. तो आप मेथड का नाम कुछ भी लिखो, सेल्फ का नाम सेल्फ की जगह एस लिखो, कुछ भी लिखो, मगर इट इज अ सेल्फ पैरामीटर. फर्स्ट पैरामीटर इज अ सेल्फ पैरामीटर. यूजिंग दिस पैरामीटर you can access a variable or method of a particular class. Method with self argument is referred as instance method. जिस मेथड में सेल्फ पैरामीटर रहेगा उसको बोलेंगे इंस्टेंस मेथड. So here we declare a display method, it is called as instance method because it includes the self parameter. जिस मेथड में सेल्फ पैरामीटर रहेगा उस मेथड को, हर एक मेथड का हम इंस्टेंस मेथड बोलेंगे. नेक्स्ट, You do not pass value for this parameter when you call the method. जैसे हम मेथड फंक्शन के साथ मैपिंग करते हैं. यहाँ पे देखो डिस्प्ले, ये मेरा फंक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं, मगर डिस्प्ले में मैंने सेल्फ लिखा है, मगर सेल्फ के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करूंगी. सेल्फ के लिए कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी. सेल्फ के बाद अगर कोई फंक्शन रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर सकती हूँ, मगर सेल्फ के लिए कौन सी भी वैल्यू पास नहीं होगी. ओके, पाइथन प्रोवाइड्स इट्स वैल्यू ऑटोमेटिकली. पाइथन इट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, सेल्फ पैरामीटर की हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट, इनिट मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लास कंस्ट्रक्टर. इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड. क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाती है. दिस मेथड इज यूजफुल टू इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट. क्लास वेरिएबल जो है, ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन करेगी ये मेथड. दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज क्लास कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजेशन मेथड और अगेन इंस्टेंस मेथड. सेम, ये कौन सा भी नाम हम इनिट मेथड को दे सकते हैं. इट विल बी द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्लास. इनिट मेथड विच टेक्स ओनली सेल्फ एज अ पैरामीटर कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जैसे हमने इनिट मेथड एक्सेप्ट सेल्फ, उसको बोलेंगे डिफॉल्ट इनिट मेथड. Init method which take parameter 2 or more than 1 or 2 parameter, it is called as parameterized constructor. Init method prefix as well as suffix by double underscore. तो ये double underscore है, उसके बाद init is a keyword, उसके बाद again double underscore, उसके बाद parenthesis. तो इसका syntax है def init, self उसका first argument compulsory रहेगा, उसके बाद argument 1, argument 2, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो हमें एग्जीक्यूट करने वो सारे स्टेटमेंट इसमें रहेंगे. नेक्स्ट, जैसे हमने देखा कि दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं उस टाइम हम क्लास नेम से उसे क्रिएट करते हैं. यहाँ पे मैंने ओबीजी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके लिए स्टूड क्लास यूज किया है. यहाँ पे भी स्टूड क्लास यूज किया क्योंकि मेरे क्लास का नाम स्टूड है, मगर ये दोनों कंस्ट्रक्टर डिफरेंट है. यहाँ पे मैंने एक भी वैल्यू पास नहीं की तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास की है इंस्टेड ऑफ सेल्फ. मेरे दो आर्ग्यूमेंट रहते हैं हर एक मेथड के, सेल्फ एंड वैल.
तो यह वैल के लिए 20 वैल्यू, तो इसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने पैरामीटर पास किए हैं, सेल्फ को वो पैरामीटर कंसिडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ लिया है ऑलरेडी, फिर भी ये डिफॉल्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं की, मगर यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास की है, तो इट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये प्रोग्राम हम पहले देखते हैं। ऑलरेडी वी लर्न दिस प्रोग्राम। एक्सट्रूड नाम का क्लास लिया, एक वेरिएबल है 30, यहाँ पे मैंने मेथड डिफाइन किए। डेफ इज अ कीवर्ड टू डिफाइन दैट मेथड। इनिट मेथड है, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, उसके बाद पैरेंथेसिस में सेल्फ लिखा है, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा है, देन प्रिंट मेथड इन अ क्लास। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू स्टूड, क्लास नेम रहेगा, उसके बाद ब्लैंक पैरेंथेसिस, और मुझे वो वेरिएबल एक्सेस करना है, प्रिंट ओबीजे डॉट वैर, उसका आउटपुट आएगा 30। यहाँ पे सेम इनिट मेथड लिए, दो पैरामीटर पास किए, सेल्फ बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहेगा, उसके बाद वैल नाम का एक पैरामीटर पास किया है, प्रिंट वैल्यू इज वैल, और ये वैल्यू जो है 20 वो पास की। तो ये 20 यहाँ जब मैं इस मेथड को कॉल में, जब कंस्ट्रक्टर में जाऊंगी, क्लास कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, डायरेक्टली ये 20 जो है तो इसको असाइन हो जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 20 बन जाएंगी, और वैल्यू इज 20 प्रिंट होगी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर दिया तो एक वैल्यू, यहाँ पे दो दिए तो दो वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू दिए तो 3, ऐसे आपको देना पड़ेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लास। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन क्लास। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड मतलब जिस मेथड में आप सेल्फ लिखोगे वो कौन सी भी मेथड रहेगी वो इंस्टेंस मेथड बन जाएगी। जैसे यहाँ पे इनिट मेथड लिखी है मैंने, ये इंस्टेंस मेथड है। इन प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने डिस्प्ले मेथड ली, इसमें भी सेल्फ पैरामीटर है, तो ये भी इंस्टेंस मेथड होगी। जिस मेथड में आप एज अ सेल्फ पैरामीटर लेते हो उस मेथड को इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, क्लास की इंस्टेंस मेथड। तो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंस्टेंस मेथड्स। सेकंड वन इज अ क्लास मेथड एंड थर्ड वन इज अ स्टैटिक मेथड। सो वी लर्न दिस। वी ऑलरेडी नो द इंस्टेंस मेथड। यहाँ पे देखो एक सिंपल प्रोग्राम लिया है, स्टूडेंट नाम का क्लास लिया है, उसके बाद इनिट मेथड लिए, इसमें यही पैरामीटर पास किए, 4 पैरामीटर, सेल्फ, रोल नंबर फॉर स्टूडेंट, नेम फॉर स्टूडेंट, कोर्स फॉर स्टूडेंट। उसके बाद आप डायरेक्टली सेल्फ डॉट रोल बोलोगे तो रोल नंबर हो जाएगा, सेल्फ डॉट नेम बोलोगे तो नेम हो जाएगा, सेल्फ डॉट कोर्स होगा तो कोर्स हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल को आप आसान करने के लिए सेल्फ आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अगर आपने इनिट मेथड ली है तो। देन मैंने एक फंक्शन लिया शो करके, उसमें भी एक पैरामीटर मेरा सेल्फ है। यहाँ पे मैंने देखो कंस्ट्रक्टर 2 बनाए, S1 एंड S2 मेरे 2 ऑब्जेक्ट है। S1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, S2 इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, अगेन इट इज कंस्ट्रक्टर। ये दोनों भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की है पैरामीटर की। अगर मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं करती वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिए। ये फर्स्ट वैल्यू 20 रोल नंबर की है, राम नेम जो है वो नेम के लिए है, और एफ जो है वो कोर्स के लिए है। तो जब मैं करूंगी S1 डॉट शो, तो S1 के लिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये इस मेथड में जाएगा। प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर किया तो ये डायरेक्टली 20 प्रिंट करेगा, सेल्फ डॉट नेम करेगा तो रैम प्रिंट करेगा, सेल्फ डॉट कोर्स किया तो एफ प्रिंट करेगा। ऑलरेडी है, ये थोड़ा कैपिटल स्मॉल हो गया है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, वो कंसिडर करो। देन again when I called stud as a method, as a constructor, default constructor, then again it goes to this method, then self roll number बन जाएगा 35, name बच जाएगा श्याम, और कोर्स बन जाएगा बी। तो ये इसका आउटपुट आएगा। तो दिस इज अबाउट द इंस्टेंस मेथड। जिस मेथड में सेल्फ रहेगा पैरामीटर वो इंस्टेंस मेथड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, क्लास मेथड। क्लास मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेथड्स। ऑर्डिनरी मेथड से वो अलग है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ क्लास मेथड इज CLS। जैसे सेल्फ एज अ मेथड रहता है, सेल्फ एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है इंस्टेंस मेथड में, वैसे ही क्लास मेथड में CLS ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है। CLS की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है जिससे आप मेथड को डायरेक्टली एक्सेस करते हो। CLS इज अ फर्स्ट मेथड। क्लास मेथड्स आर मार्क विथ क्लास मेथड डेकोरेटर, तो उसको बोलते हैं क्लास मेथड डेकोरेटर। ये सिंटैक्स है एट, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में क्लास मेथड। तो आपको कोई भी क्लास मेथड बनानी है तो पहले आपको एट क्लास मेथड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी मेथड का नाम लिखोगे वो आपकी क्लास मेथड बन जाएगी।
नेक्स्ट, क्लास मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। क्लास का नेम, नाम से ही वो मेथड आप, क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर से वो मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। इट इज अ क्लास मेथड। तो उसका सिंटेक्स पहले देखेंगे। फर्स्ट लाइन इज एट क्लास मेथड, ये कंपल्सरी रहेगा अगर आप क्लास मेथड डिफाइन कर रहे हो तो। उसके बाद डेफ इज अ कीवर्ड फॉर अ मेथड क्रिएशन और फंक्शन क्रिएशन। उसका नाम मेथड नेम, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। उसमें फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो CLS कंपल्सरी चाहिए। उसके बाद आप एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो। उसके बाद स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। और अगर हमें कॉल करना है मेथड को, स्पेसिफिक मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो उसमें क्या आएगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम और उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये जो वैल्यू 1 रहेगी इसके लिए रहेगी, वैल्यू 2 रहेगी इसके लिए रहेगी। ओके, सो वी सी वन एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास लिया है, मुझे क्लास मेथड डिफाइन करनी है तो मैंने लिखा है एट क्लास मेथड। उसके बाद उस मेथड का नाम रहेगा कैलकुलेट इज अ मेथड, आप यूजिंग डेफ कीवर्ड से वो क्रिएट करोगे। उसमें मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए। फर्स्ट इज अ CLS, यहाँ पे CS लिखो कुछ भी लिखो मगर वो फर्स्ट आर्गुमेंट CS रहेगा। उसके बाद प्राइस रहेगा। तो ये जो प्राइस है, ओके, उसके बाद मैंने लिखा है CS डॉट कॉस्ट। CS डॉट कॉस्ट माने कॉस्ट, ये याद रखना है। जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम हम लिखते हैं, वैसे ही CS डॉट कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस 10। ये मैंने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन लिखा है, मेरा मीनिंग ये है कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस 10। प्राइस में 10 मिला के मेरी कॉस्ट होने वाली, ये इसका सिंपल मीनिंग है। CS डॉट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट कंसिडर करना है, मगर हम यहाँ पे क्लास मेथड में डायरेक्टली कॉस्ट एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। डायरेक्टली हमें कुछ भी वेरिएबल अगर लिया तो CS डॉट वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो कॉस्ट इज माई वेरिएबल, I want to access, I want to use or calculate some value to that variable, then I use a word as a CS. So CS dot cost equal to price plus 10, ये मेरा सिंपल एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद मैंने रिटर्न किया है CS डॉट कॉस्ट। यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी प्रोग्राम रन होता है। रिटर्न CS डॉट कॉस्ट। तो मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इस मेथड में। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj डॉट स्टूड। यहाँ पे जो स्टूड है, यहाँ पे मैंने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज अ क्लास नेम, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद C एक वेरिएबल है मेरा, C इज इक्वल टू स्टूड डॉट कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट मेथड को यूजिंग क्लास नेम मैंने एक्सेस किया है। तो ये जो मेथड है क्लास मेथड, तो क्लास मेथड हम क्लास नेम से ही एक्सेस कर सकते। स्टूड इज माई क्लास नेम डॉट कैलकुलेट इन ब्रैकेट 495। तो ये जो 495 है ये प्राइस से मैच करेगा ये वैल्यू। तो माई प्राइस इक्वल टू 495। ओके, उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ C, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ C। तो C इज इक्वल टू स्टूड डॉट कैलकुलेट, इस मेथड में हो जाएगा। 495 मेरी प्राइस की वैल्यू है। CS डॉट कॉस्ट इक्वल टू 495 प्लस 10 दैट इज 505। तो मेरा आउटपुट है 505, ये फर्स्ट आउटपुट आ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया स्टूड डॉट कॉस्ट। अगर ये मुझे नहीं करना है, ये दोनों मुझे स्किप करना है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ प्रिंट स्टूड डॉट कॉस्ट। तो CS डॉट कॉस्ट इज नथिंग बट माई कॉस्ट, सो कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस 10। सॉरी, ये हमें लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट सी नहीं करने हमें, डायरेक्टली स्टूड डॉट कॉस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, स्टूड क्लास नेम एंड डॉट कॉस्ट, एक वेरिएबल को मैं क्लास नेम से एक्सेस कर रही हूँ। यहाँ पे हमने अब तक क्या देखा, इंस्टेंस मेथड जो होती है तो हम ऑब्जेक्ट से वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करते थे। तो यहाँ पे क्लास मेथड में हम डायरेक्टली क्लास नेम से स्पेसिफिक वेरिएबल या स्पेसिफिक मेथड को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूड डॉट कॉस्ट, ये मैंने क्लास नेम से वेरिएबल को एक्सेस किया है, और आप ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट कॉस्ट किया तो भी आउटपुट सेम आएगा 50505। मतलब क्लास मेथड आप कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। क्लास मेथड यूजिंग क्लास मेथड, यहाँ पे कैलकुलेट एक्सेस किए यूजिंग क्लास नेम, यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस किया, ये जो क्लास में यूज हुआ है डायरेक्टली आप क्लास से एक्सेस कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट से भी आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट से आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, और क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल जो है आप क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो। So this is all about the class method, ये याद रखना है। Next is the static method. Static methods are special case of methods, any functionality that belongs to class but that does not require the object is placed in the static method. हमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना तो हम स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट नहीं है स्टैटिक मेथड में, जैसे CLS भी नहीं है और सेल्फ भी नहीं। सेल्फ रहेगा इंस्टेंस मेथड में, CLS रहेगा क्लास मेथड में, मगर स्टैटिक मेथड में वैसा कुछ भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा, पैरामीटर नहीं रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम डेकोरेटर यूज करेंगे एट स्टैटिक मेथड, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेकोरेटर। जैसे क्लास मेथड में एट क्लास मेथड लिखा था, यहाँ पे स्टैटिक मेथड में एट स्टैटिक मेथड लिखेंगे। ओके, इसका सिंटैक्स देखेंगे, एट स्टैटिक मेथड, उसके बाद सेम जैसे हम मेथड और फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ इज अ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, मेथड का नाम और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पैरेंथेसिस कोलन, और उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो। सो विथ एग्जांपल वी लर्न इट। स्टूड इज माय क्लास नेम। यहाँ पे मैंने एक मेथड ली है, इनिट मेथड, उसमें सेल्फ है। अगर उसमें सेल्फ है तो वो मेथड बन गई मेरी इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पे मैंने इनिट एज अ प्रिंट किया है, तो ये जो मेथड है ये मेरी इंस्टेंस मेथड है। ओके, एट स्टैटिक मेथड मैंने दूसरी अलग मेथड ली है, डिफ हेलो। डिफ इज अ कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन, हेलो इज माय फंक्शन नेम और मेथड नेम। ये जो हेलो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। उसके बाद प्रिंट हेलो पाइथन लिखा मैंने। ओके, अभी obj.stud लिखा, तो इसका मीनिंग ये है कि यूजिंग ऑब्जेक्ट में जिस मेथड को कॉल करती हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डायरेक्टली ये यहाँ पे जाएगा और मेरा आउटपुट रहेगा इनिट मेथड। मगर फॉर स्टैटिक मेथड वी डज नॉट रिक्वायर अ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं क्रिएट करने की, डायरेक्टली हम क्लास से लिखेंगे stud.hello लिखेंगे तो ये डायरेक्टली आउटपुट आएगा हेलो पाइथन। आप ये पार्ट इसमें स्किप कर सकते हो अगर आपको ओनली स्टैटिक मेथड एक्सप्लेन करना है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट दो लाइन और ये लाइन डायरेक्टली आप लिखोगे क्लास स्टूड एट स्टैटिक मेथड हेलो प्रिंट हेलो पाइथन, stud.hello लिखोगे तो डायरेक्टली आउटपुट आएगा हेलो पाइथन। तो स्टैटिक मेथड वेरी सिंपल मेथड है जिसमें आपको कुछ भी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे सेल्फ, CLS, सेल्फ आप यूज करोगे इंस्टेंस मेथड में, CLS यूज करोगे क्लास मेथड में, मगर स्टैटिक मेथड में आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट द मेथड्स ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स आर ओन बाय क्लास, जो वेरिएबल क्लास क्रिएट करेगा उसे बोलेंगे क्लास वेरिएबल। If a class has one class variable, then there will be one copy of only for that variable. एक क्लास वेरिएबल मतलब एक क्लास के लिए अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया तो ओनली वन कॉपी उसकी रहेगी वो। ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विल शेयर द क्लास वेरिएबल। जैसे मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ मतलब वो क्लास वेरिएबल है, तो आप सब स्टूडेंट वो सुन रहे हैं, मीन्स आज मैं जो बता रही हूँ आप सब सुन रहे हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट कैन शेयर द क्लास वेरिएबल। आप शेयर कर सकते हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सब शेयरिंग कर सकते हो उसकी, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल, सॉरी क्लास वेरिएबल। अगर क्लास वेरिएबल में कुछ भी चेंज हो गया तो सब ऑब्जेक्ट में वो रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पीपीटी बना के सबको भेजी, उसके बाद चेंजेस किए तो वो सब में रिफ्लेक्ट हो गया। अगर मैं ग्रुप में भेज रही हूँ सब लोग वो देख सकते हैं। सो दिस इज अ क्लास वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स ओन बाय ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसे अगर वी कैन कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट वेरिएबल। जैसे आप 67 स्टूडेंट हो, हर एक के पास अलग अलग पेन रहेगा, तो हर एक का वेरिएबल, एक पेन जो है हर एक के पास वो अलग है। जैसे मेरे नोट्स है, मैं सबको व्हाट्सएप कर रही हूँ, मैं एक ही नोट सबको व्हाट्सएप कर रही हूँ एट अ टाइम, सब देख सकते हो नोट्स, इट इज अ क्लास वेरिएबल। ओके, और आपके पास जो पेन है और नोटबुक है हर एक के पास एक एक अलग, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल। हर एक ऑब्जेक्ट के पास अलग पेन है मतलब अलग वेरिएबल है, मगर जो क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ वो ओनली वन है फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। 67 स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक मैं पीडीएफ पास कर रही, तो वो सब 67 स्टूडेंट्स में उसमें उसको देख सकते हैं। So that notes is a class variable. The object variable is not shared between object, मतलब एक पेन जो हर एक के पास है वो दूसरों को दे सकता है, मतलब दे सकते हैं इन जनरल रियल वर्ल्ड में, मगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल शेयर नहीं करेगा, मतलब कोई किसी को पेन एक्सचेंज या नोटबुक एक्सचेंज नहीं करेगा। A change made to the object variable by one object will not be reflected in other object. जैसे आप एग्जाम में पेपर लिख रहे हो 67 स्टूडेंट्स, हर एक के पास आंसर शीट है, हर एक पेपर लिख रहा है, तो हर एक का ऑब्जेक्ट वेरिएबल अलग है। एक फर्स्ट स्टूडेंट ने
एग्जाम क्वेश्चन 3 सॉल्व किया, सेकंड स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, तो क्वेश्चन 3 अगर फर्स्ट ने सॉल्व किया तो उसका रिफ्लेक्शन मतलब उसके चेंजेस क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट के जो स्टूडेंट रोल नंबर 2 है उसके क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में नहीं होते। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने चेंज किया तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं होता, मगर मैं अगर नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर मैंने कुछ चेंजेस किए तो वो सबको रिफ्लेक्ट होंगे। तो दिस इज अबाउट द क्लास वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल की कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के पास रहेगी, आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। एक ने अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल में चेंजेस किए तो उसके चेंजेस दूसरे वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मगर क्लास वेरिएबल एक ही रहेगा। सपोज अगर कितने भी क्लास वेरिएबल आप लिख सकते हो, मगर एक क्लास वेरिएबल है तो सब ऑब्जेक्ट के लिए वो क्लास वेरिएबल सेम रहेगा, अगर उसमें चेंजेस किए तो वो सब ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लास वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल का। स्टूडेंट नाम का मैंने क्लास लिया है और एक वेरिएबल लिया है कॉलेज इक्वल टू डीपीसी। ये जो मेरे वेरिएबल है क्लास वेरिएबल है, ओके। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया है नॉर्मल फंक्शन शो सेल्फ कॉमा डिवीजन। तो ये इंस्टेंस मेथड है बिकॉज इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर है। सेल्फ डॉट डिवीजन इक्वल टू डिवीजन, डायरेक्टली आप सेल्फ से वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है कॉलेज स्टूड डॉट कॉलेज। तो ये कॉलेज जो वेरिएबल है ये क्लास वेरिएबल है, डायरेक्टली मैं क्लास के नाम से उसे प्रिंट कर सकती हूँ। और डिवीजन मैंने प्रिंट की है सेल्फ डॉट डिवीजन। तो सेल्फ डॉट डिवीजन ये मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं सेल्फ, और क्लास वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप क्लास नेम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा, ये मेरा क्लास है यहाँ तक, ओके। उसके बाद मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूड। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर या नेम इज सेम एज द क्लास नेम, उसमें ओनली पैरेंथेसिस रहेगा जो क्लास में नहीं रहेगा। तो ये मैंने कॉल करने के बाद यहाँ पे एक S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन उस ऑब्जेक्ट से मैं मेथड क्लास की एक्सेस कर सकती हूँ। तो शो मेथड को मुझे चाहिए क्लास की, तो आई एम राइटिंग S1 डॉट शो और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया, ये एफ मीनिंग डिवीजन है। तो ये हो गया, शो मेथड में चला गया हो तो डिवीजन की वैल्यू हो गई एफ ई। तो सेल्फ डॉट डिवीजन इक्वल टू डिवीजन मतलब एफ ई। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करोगी कॉलेज स्टूड डॉट कॉलेज, तो कॉलेज की वैल्यू है डीपीसी हुई एंड डिवीजन इक्वल टू सेल्फ डॉट डीवी मीन एफ ई। तो ये मेरा आंसर है यहाँ पे, ओके। प्रिंट S1 डॉट कॉलेज, डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट से क्या कर रही हूँ, वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ। आप कर सकते हो, आपको ये मालूम है डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस अ वेरिएबल। कॉलेज नाम का जो वेरिएबल में S1 से एक्सेस कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी डायरेक्टली डीपीसी प्रिंट होगा। डायरेक्टली आप क्लास नेम से भी एक्सेस करोगे या आप ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हो वेरिएबल, ओके। So this is about the class variable and object variable. Next is a delete method, del method और destructor. Initialize method क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को initialize an object when it is created। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए init मेथड यूज करेंगे। और डिलीट मेथड डिलीट द ऑब्जेक्ट एंड फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड देम। किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो del मेथड यूज करेंगे, क्रिएट करना है तो init मेथड यूज करेंगे, इनिशियलाइज करना है तो init मेथड यूज करेंगे। The delete method automatically called when object is going out of scope or there is no any reference to the object। ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो गया, उसका यूज नहीं है कुछ भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करने का यूज डिलीट मेथड करेगी, डिस्ट्रक्टर करेगा। इट इज अ डिस्ट्रक्टर विच डिस्ट्रॉयज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का यूज काम डिस्ट्रक्टर करता है, ओके। तो इसका सिंटैक्स सेम है जैसे इनिट मेथड का। डेफ इज अ कीवर्ड, उसके बाद स्पेस अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर डेल कीवर्ड डबल अंडरस्कोर और उसके बाद सेल। इनिट में यहाँ पे सिर्फ इनिट आएगा, ENIT इनिशियलाइजेशन, एंड यहाँ पे डिलीट मेथड में सिर्फ डेल आएगा। उसके बाद स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ये आएंगे, ओके। नेक्स्ट, ये एग्जांपल है डिस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे सिंपल एक क्लास लिया है स्टूड नाम का, ओके। और c इज इक्वल टू 0 लिया है, एक क्लास वेरिएबल है 0, c इक्वल टू 0 इज अ क्लास वेरिएबल। यहाँ पे इनिट मेथड ली है मैंने जिसका फर्स्ट पैरामीटर कंपल्सरी सेल्फ है, उसके बाद कौन सा भी पैरामीटर ले सकते हो। सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, इट इज ऑब्जेक्ट वेरिएबल, वी ऑलरेडी नो लर्न दैट। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल प्रिंट कर रही हूँ, ओके।
उसके बाद स्टूड डॉट सी, स्टूड ये मेरा क्लास नेम है, एक मैंने वेरिएबल लिया है स्टूड डॉट सी करके, इक्वल टू, ये मेरा क्लास वेरिएबल इसलिए मैं डायरेक्टली क्लास से एक्सेस कर रही हूँ स्टूड डॉट सी, और सेल्फ डॉट वैल जो है मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, सो मैं उसे पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से प्रिंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से एक्सेस कर रहे हैं, और क्लास में जो वेरिएबल रहता है वो क्लास से एक्सेस होता है। तो स्टूड इज माई क्लास एंड सी इज माई क्लास वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन द क्लास, सो स्टूड डॉट सी से वो एक्सेस होगा, और ये सेल्फ डॉट वैल जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, वो सेल्फ से एक्सेस होगा। सो स्टूड डॉट सी इक्वल टू स्टूड डॉट सी प्लस 1, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया क्लास वेरिएबल, उसके बाद डिस्ट्रक्टर यूज किया है, डिस्ट्रक्टर में मुझे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड करना है, ओके, और ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट 1 2, ऑब्जेक्ट ये अलग ऑब्जेक्ट में अलग वैल्यू पास की है, या ऑब्जेक्ट में अलग वैल्यू पास की, या ऑब्जेक्ट में अलग वैल्यू पास की, ऑब्जेक्ट का नेम सेम है मगर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर पास किया पैरामीटर्स, तो 3 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मैंने पास किए है। तो फर्स्ट स्टूड के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्लास में जाएगा, उसके बाद इनिट मेथड में जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू ये वैल्यू जो 10 है वो इसको आसान हो जाएगी, ओके। तो प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 10, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनिशियली 0 वैल्यू ली है सी की, स्टूड डॉट सी इक्वल टू स्टूड डॉट सी प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1, तो स्टूड डॉट सी की वैल्यू हो गई 1, मतलब सी की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे मैं जब प्रिंट करती हूँ क्लास वेरिएबल इक्वल टू स्टूड डॉट सी, तो मेरा आउटपुट आएगा 1, ओके। उसके बाद सेम अगेन ऑब्जेक्ट वेरिएबल 20, ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, सो ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 20, अगेन अभी सी की वैल्यू मेरी 1 है, स्टूड डॉट सी इक्वल टू स्टूड डॉट सी प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 2, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ये मैसेज आएगा। देन अगेन ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 30, ये, और क्लास वेरिएबल मेरा 2 था, 2 प्लस 1 हो गया 3, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो आंसर आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ये कैसे भी आ सकता है, इसका कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं। इसका मीनिंग ये है कि देखो पहले कौन सा भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, उसमें वो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमारे 3 ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, सॉरी ओबीजे, मगर यहाँ पे कौन सा ओबीजे डिस्ट्रॉयड हुआ वो हम पता नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और ये सीक्वेंस कैसे भी आएगा, ये मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हुआ है, उसके बाद 2 हुए हैं, आपके ऑटोमेटिक 3 ऑब्जेक्ट एक के बाद डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या लास्ट में 3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। तो ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉयड करना है, तो इसका आउटपुट हर टाइम जब रन करोगे तो अलग आ सकता है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का आउटपुट, बाकी आउटपुट सेम आएगा। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स, data members are variable and methods declared and defined in a class. There are 2 types of data members in a class, public data members and private data members. So public data members means easily available. Public जैसे हमने ऑलरेडी इन फंक्शन लर्न किया है कि पब्लिक मेथड रहती है, प्राइवेट मेथड रहती है। पब्लिक मेथड इनसाइड द क्लास में कहीं पे भी एक्सेस होती है, और प्राइवेट मेथड सिर्फ विद इन फंक्शन एक्सेस होती है। वैसे ही थोड़ा सा है, Public variables and methods are those variables and methods that are defined in the class. क्लास में लिखेंगे वो। Public data members are accessible in class and outside the class. क्लास के पूरे क्लास में उस मेथड का हम यूज कर सकते हैं, क्लास के आउटसाइड में उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक मेथड। दिस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग डॉट ऑपरेटर। प्रोग्राम में कहीं पे भी उसे डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक डेटा मेंबर्स कैन बी कॉल्ड विद क्लास नेम एज वेल ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम से उसे एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक वेरिएबल को, या पब्लिक डेटा मेंबर, मतलब डेटा मेंबर मीन्स वेरिएबल भी आएगा और मेथड भी आएगा, तो दोनों को कंबाइन एज अ डेटा मेंबर बोलते हैं। जैसे पब्लिक वेरिएबल एंड पब्लिक मेथड दोनों को कंबाइन करके पब्लिक डेटा मेंबर हो गया। तो आप ऑब्जेक्ट से मेथड को, पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, या क्लास से पब्लिक मेथड को, या मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास से, वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम। सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द पब्लिक डेटा मेंबर्स। जैसे हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक दिखे सभी पब्लिक के दिखे। ये देखो मेथड है, ये वेरिएबल है कॉलेज, ये पब्लिक वेरिएबल है, ये डायरेक्टली हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी अब तक जो भी हमने एग्जाम्पल देखे, सब जो एग्जाम्पल थे वो
सब पब्लिक डेटा मेंबर के थे। उसमें जो मेथड थी वो पब्लिक थी, बाय डिफॉल्ट वो मेथड पब्लिक रहती। या कौन सा भी वेरिएबल अगर आप क्लास में लिखोगे या कौन से भी मेथड आप क्लास में लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहेगी। प्राइवेट के लिए आपको अलग से सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा वो हम देखते हैं अभी। प्राइवेट डेटा मेंबर्स मीन्स प्राइवेट मेथड प्राइवेट वेरिएबल आर डिफाइंड इन द क्लास विद डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स। डबल अंडरस्कोर आएगा उसके पहले, अगर वो मेथड आपको लिखनी तो वो हो गई आपकी प्राइवेट मेथड या प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन क्लास ओनली, नॉट आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास वो एक्सेस नहीं होंगी। जैसे अगर दो डिवीजन है, डी एंड ई डिवीजन, तो डी डिवीजन सपोज कुछ लेक्चर डी डिवीजन के क्लासरूम में हो रहा है, तो दैट लेक्चर इज एक्सेसिबल टू ओनली डी डिवीजन। डी डिवीजन कैन नॉट एक्सेप्ट दैट लेक्चर, दिस इज अ प्राइवेट। मगर डी और ई डिवीजन का कंबाइंड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी कुछ भी मैं अगर मैं नोट्स भेज रही हूँ तो इट कैन बी एक्सेसिबल टू बोथ द ग्रुप्स, both the classes, so it is a public data member. So with example I explain it. First we learn the syntax, object name dot class name और private variable name अगर हमें एक्सेस करना है तो। ओके, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया है, ये कंसिडर करो। ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम आएगा डायरेक्टली, उसके बाद डबल अंडरस्कोर किसके लिए, प्राइवेट वेरिएबल नेम के लिए। प्राइवेट वेरिएबल नेम रहेगा, प्राइवेट मेथड नेम रहेगा, तभी उसके पहले डबल अंडरस्कोर आएगा, उसका मीनिंग ये प्राइवेट। एक एग्जांपल है, सपोज स्टूडेंट इज माय क्लास, मोबाइल नंबर मैंने लिया है, ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट क्लास वेरिएबल। उसके बाद एक मेथड लिए, इसमें एक पैरामीटर पास किया। आपको मालूम है अगर कौन से भी मेथड में सेल्फ एज ए पैरामीटर हो गया तो वो इंस्टेंस मेथड होती है। उसके बाद माय नंबर इज, और ये प्रिंट करना है। वो प्रिंट करने के लिए मेरा सिंटेक्स है क्लास नेम, यहाँ पे लिखा है डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा। आप ऑब्जेक्ट नेम से भी लिख सकते हैं या क्लास नेम से भी लिख सकते हैं। ओके, ये सिर्फ सिंटेक्स, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ ये लिखा है, पूरा नाम लिखा है, ये प्राइवेट वेरिएबल नेम का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उन्होंने ऐसे ही लिखा है डायरेक्टली। स्टूड डॉट डबल अंडरस्कोर मोबाइल नंबर, ये क्लास का नाम है, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद डबल अंडरस्कोर मोबाइल नंबर। तो मेरा नंबर हो गया। जब मैं लिखूंगी s1 इक्वल टू स्टूड, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s1 यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद s1 डॉट शो, तो इस मेथड को मैं बाय डिफॉल्ट कॉल कर रही हूँ, इस मेथड के इसमें जाएगा और प्रिंट करेगा स्टूडेंट डॉट डबल अंडरस्कोर मूल नंबर, मतलब प्राइवेट नंबर जो मेरा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइवेट डेटा मेंबर एंड पब्लिक डेटा मेंबर। पब्लिक डेटा मेंबर जो हम प्रोग्रामिंग सब प्रोग्राम अब तक देखे वो सभी पब्लिक डेटा मेंबर के। प्राइवेट आपको असाइन करना पड़ेगा, प्राइवेट मेथड और क्लास यूजिंग डबल अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग ऑफ दैट वेरिएबल नेम और मेथड नेम। उसके बाद हम सिंपल एक प्रोग्राम देखेंगे। ये प्रोग्राम प्रीवियस एग्जाम में आया था। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा था कि क्रिएट अ टू ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ क्लास, सिंपल क्लास कार and use two attributes or parameter name and cost and display it using two object। ऐसा एक क्वेश्चन था फॉर 6 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया है, क्लास इज अ कीवर्ड, उसका नाम है कार स्कोलन। उसके बाद मैंने यहाँ पे कमेंट लिखी, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रिपल कोट लिखना चाहिए था एक्चुअली, मतलब ट्रिपल कोट मीन्स डॉक स्ट्रिंग लिखिए, अ सिंपल क्लास फॉर कार्स, या डायरेक्टली हैश लिख के आप कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने, डेफ इज अ कीवर्ड, इनिट मेथड, सेल्फ इज माय फर्स्ट पैरामीटर। उसके बाद दो पैरामीटर लिए, नेम और कॉस्ट। आपको मालूम है कि सेल्फ से आप ये जो है दोनों, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है और दोनों भी मैं एज अ सेल्फ से एक्सेस कर सकती हूँ। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम होगा, सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट होगा। ये मेरी इनिट मेथड है, उसको इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं। जिस मेथड में सेल्फ पैरामीटर है उसको इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक सेपरेट फंक्शन लिया डिस्प्ले सेल्फ करके, ये भी इंस्टेंस मेथड है क्योंकि इसमें सेल्फ पैरामीटर है। उसके बाद दिस इज अ सेल्फ डॉट नेम चाहिए, कार विथ कॉस्ट सेल्फ डॉट कॉस्ट। एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, उसमें सेल्फ नेम और कॉस्ट मैंने कार की प्रिंट किया। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया O1, उसमें ये कंस्ट्रक्टर लिया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें वैल्यू पास की फेरारी फॉर नेम
10 लाख पर कॉस्ट। O1 डॉट डिस्प्ले जब मैं लिखूंगी तो ये डायरेक्टली इस फंक्शन में जाएगा और प्रिंट करेगा दिस इज अ फेरारी कार विथ कॉस्ट 10 लाख। ओके, उसके बाद मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें 2 वैल्यू पास की। ये अगेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम रहता है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और उस फंक्शन को फिर कॉल किया और एक्सेस किया यूजिंग ऑब्जेक्ट टू O2 डॉट डिस्प्ले, तो आएगा दिस इज स्विफ्ट कार with cost 5 lakh. So this is all about the classes and the object. Again, we take one simple example here. यहाँ पे क्लास लिया है टेस्ट, ओके, उसके बाद एक इनिट मेथड ली है, उसमें सेल्फ पैरामीटर पास किया है। आपको मालूम है ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ डॉट एक्स लिखना पड़ता है। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 1 लिया, उसके बाद टी इक्वल टू टेस्ट लिखा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे ये जो टेस्ट है ऐसा एक वेरिएबल लिखा है। उसके बाद ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं पास की है हमें, यहाँ पे एक वेरिएबल सिर्फ लिखा है इसलिए। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे टी डॉट एक्स तो आएगा एक्स की वैल्यू 1 है तो आउटपुट आएगा 1, टी डॉट एक्स 1, जितनी बार प्रिंट करेंगे 1 1 आउटपुट आएगा। टेस्ट में इज माई कंस्ट्रक्टर हियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल using object, t is my object t dot x। और उसको जब मैं वैल्यू असाइन करती हूँ x को सेल्फ डॉट एक्स करके असाइन करती हूँ, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। अगर ये मैं इस मेथड से पहले डिफाइन करती तो वो मेरा क्लास वेरिएबल बन जाता। ओके, सो have you clear all the concept? If you have any doubt then write it on comment, like and share the video. Thank you.